السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ایس پی کینٹ سعید عزیز کے زیر نگرانی اشتہاری ملزمان کے گرد گھیرا تنگ. جنوبی چھاونی پولیس کی کارروائی. 10 سال سے مفرور اشتہاری ملزم طارق گرفتار. ملزم چیکٹس انر فراڈ سمیت خیانت مجرمانہ کے 15 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا. ملزم کے خلاف لاہور، ساہیوال، فیصل آباد، چنگ اور سرگودا میں 20 سے زائد مقدمات درج ہیں. ملزم نے مدعی مقدمات کے ساتھ 25 کروڑ روپے سے زائد کا فراڈ کیا تھا. ملزم کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا. کسی کو بھی عوام کی پراپرٹی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پولیس لائن اٹک میں کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے قد و چھاتی کی پیمائش کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں مورخہ دور 3 نومبر کو پولیس لائن میں تمام امیدواران کی پیمائش کی جا رہی ہے. ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی خود اس تمام عمل کی نگرانی کر رہے ہیں. اس موقع پر ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ بھرتی کے تمام عمل میں شفافیت اور میرٹ کی پاسداری کو 100% یقینی بنایا جائے گا. تمام امیدواران اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھیں اور کسی نوسر باز کے جھانسے میں نہ آئیں. ایس پی کینٹ سعید عزیز کی ہدایت پر کینٹ پولیس کا ناجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. منامہ پولیس کی میڈیکل ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2 گروپوں کی اسلحے کے ساتھ موجودگی پر بڑی کارروائی. 10 ملزمان گرفتار. مقدمات درج. تحقیقات جاری. ملزمان کے قبضے سے 4 کلاشن کوف، 3 پسٹلز، 4 رائفلز، پیما میگزین اور 125 گولیاں برآمد. ملزمان اسلحے کے ساتھ علاقے میں دہشت پھیلاتے تھے. عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. شو آف ویپن اور ناجائز اسلحے کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے. صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو درندگی کا شکار ہونے والے شہید عمران کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے. ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کلات عزت نذیر بلوچ، اسسٹنٹ کمشنر کلات زائد لانگو، ایس ایس پی کلات ارباب امجد قاسی اور دیگر موجود تھے. شہید عمران کے ورثاء سے تعزیت اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کم سن طالب علم کے ساتھ زیادتی اور قتل کرنا درندگی کی انتہا ہے. معاشرے میں ایسے واقعات کا ہونا کسی المیت سے کم نہیں، مگر مجھے فخر ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا مکمل احساس ہے. قلات انتظامیہ اور پولیس نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. آگے بھی امید ہے کہ ملزمان اپنے کیفر کردار تک جلد پہنچ جائیں گے. لواحقین کے مالی امداد کے لیے ہوم ورک مکمل کر کے سمری وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھجوا دی ہے. دہشت گردی پورے ملک کا مسئلہ ہے. ہمارے حکومت سے پہلے دہشت گردی کی جو کارروائیاں روز کا معمول تھا، اس حکومت میں مکمل امن تو نہیں، مگر 2 سال سے سیٹلر اور ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں. امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. فورسز کی کوششوں سے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بن جائے گا. پی ڈی ایم جلسے کی اتنی اہمیت نہیں. اپوزیشن غلط پروپیگنڈے کر رہی ہے. اس کا کام یہی ہے. اداروں کے خلاف غلط بیانی کی وجہ سے باہر دنیا میں اداروں کے خلاف غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اسی لیے اپوزیشن کے خلاف FIR درج ہو رہی ہے. اپوزیشن کے حب الوطنی پر کوئی شک نہیں. ناراض بلوچ لیڈروں سے مذاکرات کے حوالے سے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ باہر بیٹھے ناراض بلوچ لیڈران سے رابطہ ہے اور آگے بھی مذاکرات کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان اس حوالے سے اہم فیصلے. وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار کے حکم پر تحصیل سطح پر ماہوار کھلی کچہری کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکا راشد اقبال نے طویل وقت کھلی کچہری تحصیل احاطے میں لگائی اور اس موقع پر ریونیو اور میونسپل افسران اور CO تحصیل کونسل نے بھی شرکت کی. کھلی کچہری کے اس موقع پر درجنوں افراد مرد خواتین نے اپنے ذاتی اور اجتماعی مسائل اور مشکلات سے آگاہ کیا اور اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکا راشد اقبال نے تمام سائلان کے مسائل دلجمی سے سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات صادر کیے اور باور کرایا ہے کہ عوام کے مشکلات کے حل کے لیے اداروں کا وجود موجود ہے. اس لیے کسی بھی شخص کو کسی بھی ادارے سے یا ملازم سے کوئی شکایت ہو تو ان کا دفتر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا ہے. ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی زیر صدارت صدر ڈویژن میں اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تشکیل کردہ ٹیمز کے انچارجز کے ساتھ میٹنگ. تمام ٹیمز کی گزشتہ ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ. ناقص کارکردگی پر ٹیم انچارجز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے. ایک کیٹیگری کے تمام اشتہاری ملزمان کے قوائف جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت. مفرور اشتہاریوں اور ریکارڈ یافتگان سے متعلق دیے گئے ٹارگٹ کو اور صورت مکمل کیا جائے گا. تمام ٹیمیں اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں. مفرور اشتہاری اور عادی ملزمان کے گرد مزید گھیرا تنگ کریں. ایمانداری سے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں.
जिला बार काउंसिल के नायब सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुका सकरंट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद अली हैदर शाह को मौत की धमकियां देने वाले जवाबदार के खिलाफ FIR होने के बावजूद गिरफ्तार न होने के खिलाफ सकरंट थाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं 47 न्यूज नवाब शाह के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी तालका सकरंट के जनरल सेक्रेटरी को कुर्बान मरी की तरफ से मौतबार धमकियां दी गई है। इसी हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद और तालका सकरंट के वर्करों ने सकरंट थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। आइए हम वर्करों से और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज हम थाने के सामने सकरंट इसलिए बैठे हैं कि हमारे ऑफिस बैरियर जनरल सेक्रेटरी तालका सईं अली हैदर शाह के साथ कुर्बान मरी जो एक व्याजी भत्ताखोर है, उसने उसके घर पे जाके उसके साथ बड़ी बदतमीज़ी की और उसके दरवाज़े को पलांग के उसके बच्चों को थ्रेट किया। भत्ताखोर ने भत्ता मांगने के लिए हमने FIR करवाई और इस टाइम पे तालका सकरंट की पुलिस का ये रवैया है कि हमने कल अपनी आंखों से देखा 2 फरीकों में झगड़ा हो गया। एक रिंद बरादरी का, उनकी NC भी नहीं थी, FIR भी नहीं थी, फिर भी उनके घर के जो भी मवेशी थे, जो भी जानवर थे, वो इधर थाने पे उठा के लाए। हमारा साथ जो हमारे पार्टी के इतने मौजूद और जो वकील हैं और सिविल सोसाइटी के इतने अच्छे बंदे के साथ इतनी बदतमीज़ी हुई और उसके ख़िलाफ़ जो हमने FIR कराई, उसके किसी बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया। अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम सरापा एहतजाज हैं, जब तक कुर्बान मरी गिरफ़्तार नहीं होगा हमारी पूरी क़यादत जो है इधर बैठी रहेगी और साईं अली हैदर के शाह के साथ जो इंसाफ नहीं होगा हम इधर रोड पे ही बैठे रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका सकरंट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद अली हैदर शाह साहब के घर पे जो कल वाक़या हुआ है, एक भत्ताखोर ने भत्ता न देने के पर उसके मौत मार धमकियां दी हैं और हथियार लेकर उसके ऊपर हमला किया घर के ऊपर, और उसका FIR हमने रात कटवाया। आज उसके ऊपर 30 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन कोई जवाबदार गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग पुलिस के उस रवैये के खिलाफ, सकरंट थाने के SHO के रवैये के खिलाफ, जो उनका जो भत्ताखोर हैं, व्याजखोर, उनका साथारी बना हुआ है, उसके लिए हम थाने के ऊपर धरना दे के बैठे। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे। थाने के सामने बैठे हुए हैं। हमारे लीडर्स ने भी आपको बताया कि एक शख्सियत सकरंट की बहुत मौजूद शख्सियत अपनी जगह अपनी ज़ात में, वकील और एक सादात फैमिली, उसके साथ इतनी नाज़ेबा जो रवैया हुआ है कि ठीक है पर्चा कटवाया गया सकरंट थाने पे, लेकिन जवाबदारों की गिरफ्तारी ना होना मतलब जवाबदार का साथ देना है। तो हम इस पुलिस के सकरंट पुलिस के इस रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तब तक बैठे हैं जब तक कुर्बान मरी जवाबदार को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। पार्टी का एक अदना वर्कर हूँ, साथ साथ वकील भी हूँ। कुर्बान मरी और उसके भाई जो मेरे घर पे किलाशनकोव्स के साथ आए और मुझसे भत्ता तलब किया, ना देने पर उन्होंने धमकियां भी दी और जो है मेरे बच्चों के हिसाब से वो चादर चौदीवारी का भी ख्याल नहीं किया। उसके अलावा उन्होंने मुझे इस हद तक धमकाया कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश से भी हम भत्ता वसूल करेंगे। न फ़कत मुझसे, इससे पहले भी काफ़ी मरतबा शिकायतें आई हैं कि सारे सकरंट सिटी में ये भत्ताखोर भत्ता मांगते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इस मरतबा तो उन्होंने हद ही कर दी और उसके बाद से हमने अपनी आला क़यादत और अपने जो मेरे आला ओहदेदार हैं उन सब से बात की और उनको गुजारिश की कि ये भत्ताखोर, ये गुंडा जो मेरे घर पे आया है और किलाशनकोव से के साथ आया है, मुझे थ्रेट किया, मेरे बच्चों को थ्रेट किया। और हम यहाँ सकरंट पुलिस, क्योंकि सकरंट पुलिस वाले जब मैंने FIR कटवाई उसके बाद उसका भाई जो मैंने खुद देखा, वो जो FIR में जवाबदार है, मैंने SHO को कॉल की कि भाई ये जा रहा है, आप इनको अरेस्ट करें। तो उसने मुझे ये कहा कि मैंने बुलाया है, मैं इसको अरेस्ट कर लूँगा, मगर वो उनसे मिला हुआ है। और खुदारा मेरी अपनी आला क़यादत और जुडिशरी से अपील है कि मेरे जो ये जो गुंडा है सकरंट का, उसको अरेस्ट किया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए।
जी, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के अहदेदार और तालका सकरंड के अहदेदार और एडवोकेट सैयद अली अदर शाह का मौक़िफ़ जाना। उनका कहना है कि एक भत्ताखोर जिसने भत्ता मांगा और क्लाशन लेके मेरे घर पर मुझे मौतबार धमकियां दी, उसी के खिलाफ आज सकंड थाने के सामने एहतजाज है। जब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन उस्मान लगारी के साथ गुलमोहम्मद लगारी, 47 न्यूज़, सकरंड। मुल्क की अजीम रूहानी मरकज दरगाह पीर जाकरी का 124वां उर्स मुबारक दरगाह पीर जाकरी सकरंड में बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर मुल्क भर से दरगाह के मुरीदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हर साल की तरह थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं 47 न्यूज़ नवाब शाह के नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकरंड दरगाह पीर जाकरी पर, जहाँ दरगाह का 124वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उस मौके पर थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाब शाह की जानिब से बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कैंप का इनेकाद किया है, जहाँ मासूम थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ब्लड डोनेट किया जा रहा है। आइए हम जहाँ के जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं और थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाब शाह वालों से भी जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। के मौके पे थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के बच्चों के लिए यहाँ कैंप लगाई गई है और इस कैंप में सैयद मुनीर शाह साहब का बहुत ताउन है और हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनर्स हमारे पास इधर कैंप में आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 2000 पेशेंट्स हैं जो 8 दिन 10 दिन में उनको ब्लड लगता है। तो हमेशा जब भी उर्स मुबारक होता है तो यहाँ पे हमारी कैंप लगती है और लास्ट 6 सालों से ये कैंप चलती आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से बहुत ब्लड मिलता है और वो ब्लड थैलेसीमिया सेंटर के बच्चों को लगता है और वो बहुत खुश होते हैं। 124 उर्स मुबारक शरीफ़ है, जीअं त हर साल हिते कैंप लॻंदी आहे। असां थैलेसीमिया सेंटर डॉक्टर सादिक साहब खे हिते असां लॻाईंदा आहियूं हर साल, जंहिंमें असांजी डोनर ॾेई मरीज़ थैलेसीमिया जा जेके 2000 दाख़िल आहिनि उनखे असां सपोर्ट कंदा आहियूं ऐं असां सलाम पेश था कयूं जेके जमायत पंहिंजी जोश जज़्बे सां ॾिए थी हर साल ऐं हमेशा थींदी रहंदी इंशाअल्लाह। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून देना, आज दरगाह पीर ज़ाकरी के सामने ये जो कैंप लगी है इसमें बड़े तादाद खून दे रहे हैं। हमने इसका विज़िट किया है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। ये एसाल सवाब है, किसी को खून देना, ये काम होते रहें। इंशाल्लाह इस कैंप से फ़ायदा होगा गरीब मरीज़ों को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CDF के चेयरमैन अब्दुल हमीद आरई, जिसने ब्लड डोनेट कैंप का विज़िट भी किया है। आइए उनसे जानते हैं कि वो ब्लड डोनेट कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपने जो ब्लड डोनेट कैंप का विज़िट किया है, आपने इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम सकरंड के लोग खुश नसीब हैं कि हमारे सकरंड में इतनी बहुत बड़ी दरगाह शरीफ है जिसका आज 124वां सालाना उर्स हो रहा है। वहाँ पे आके ह्यूमनिटी जो इंसानी खिदमत का जज्बा थैलेसीमिया केयर सेंटर वालों ने यहाँ पे कैंप लगवाया और पीर ज़ाकरी की पूरी टीम और सैयद मोहम्मद मुनीर शाह के सरबराही में जो इतना बेहतरीन काम इंसानियत के लिए हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के गद्दी नशीन अगर इसी को फॉलो करें तो कम से कम जो ब्लड का मसला है हमारे पाकिस्तान में हल हो सकता है। साथ इस वक्त मौजूद है थैलेसीमिया केयर सेंटर बोर्ड के मेंबर काजी जावेद सनाई। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस ब्लड डोनेट कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज जो दरगाह पीर ज़ाकरी पे ब्लड डोनेट कैंप का विज़िट किया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेहरबानी गुल साहब, आज की ये ब्लड कैंप डोनेशन जो हमने लगाई है ये थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि दरगाह पीर ज़ाकरी जो पाकिस्तान की मारूफ दरगाह है, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये रूहानी मरकज़ है, यहाँ से लोग फैज़ लूटते हैं। तो सैयद मोहम्मद मुनीर शाह यहाँ के सज्जादा नशी हैं, वो हर साल जहाँ अपनी दरगाह का उर्स शरीफ मनाते हैं, उर्स शरीफ के साथ साथ थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे जो हैं जो इस ब्लड के सहारे जीते हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम करते हैं। तो आज उसी सिलसिले में 124वां उर्स शरीफ है
उसमें साईं मोहम्मद मुनीर शाह ने ब्लड कैंप का एहतमाम किया। हम देख रहे हैं कि साईं के जो मुरीदैन हैं, जो अक़ीदत में हैं, वो जोक दर जोक आ रहे हैं और ब्लड का अतिया जमा करा रहे हैं। आपने यहाँ के आने वालों का व्यूज़ जाना, जिनका कहना था कि हर साल की तरह आज इस साल भी 124वां उर्स मुबारक दरगाह पीर ज़ाकरी पे ब्लड डोनेट कैंप लगाया, जहाँ पीर ज़ाकरी के मुरीद हैं उन्होंने बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट किया है। कैमरामैन उस्मान लगारी के साथ गुल मोहम्मद लगारी, 47 न्यूज़ सकरंड। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।